Good evening, sir. गुड इवनिंग रामकली, रेखा Good evening, और sir. आज रेखा Good भी। evening, everyone. Good गुड evening, sir. इवनिंग। गुड इन आवर 12th सेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन फॉर हम होंगे कामयाब गर्ल्स चैप्टर। हम लोग पिछले 6-7 से अधिक मतलब 11 बार हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर चुके हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। हर बार कोई ना कोई बढ़िया के बताता है या हम लोग खुद आपस में बढ़िया डिस्कस करते हैं। और मुझे लगता है कि अभी इस डिस्कशन से हम सबको फायदा भी है। सबका थोड़ा बोलने की स्पीड भी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। इट इज गुड। तो वेलकम टू यू ऑल। आज का टॉपिक हम लोगों ने रखा है वर्ल्ड एस्थमा डे। 2 मई को वर्ल्ड एस्थमा डे था। एस्थमा को हम लोग हिंदी में दमा भी बोलते हैं, विश्व दमा दिवस। तो चूंकि ये गर्ल्स का चैप्टर है, आप लोग ही इसको लीड करते हो, आप लोग ही आगे बढ़ाते हो। तो मैं हैंड ओवर करूंगा रामकली को कि आप स्टार्ट करो। रामकली, आई विल बी देयर। और आज रामकली ने अपने एक फ्रेंड को भी जोड़ा है, ऐड किया है। 1 बाय 1 आप सारे लोग एक एक फ्रेंड को अपने जोड़ो और ऐड करो, जिससे हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो अर्चना मैडम है, संजय थड़े भैया है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बढ़िया से करो और जो भी हेल्प है सब होगा। तो ग्रुप डिस्कशन चूंकि आप लोगों को लीड करना है, तो हैंड ओवर टू रामकली। फिर 1 बाय 1 आप सब लोग बोलो। आई विल बी लिसनिंग आल्सो। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। हैंड ओवर टू रामकली। Thank you, sir. Thank you, sir. Good evening, everyone. Good Today we evening. are here to have a group discussion on Bird Asthma Day. This is a day which raises awareness about asthma and its impacts on people's life. And this is a chronic respiratory disease that affects millions of people worldwide. And it is essential to understand the disease, causes, symptoms, and its treatment. So first of all, we should know what is this asthma. The asthma is a condition in which our airways narrow and swell and may produce extra mucus. So this can make breathing difficult and trigger coughing, whistling sound when we are breathing out, and it can cause shortness of breath. For some people, maybe it is a minor disease, but for others, it can be a major problem. So that's why we should focus on this disease and why we are celebrating this asthma day. We are celebrating so that we can make aware people about this and what is its impact and how it is affecting our life. So we know this is a very big disease and it can't be cured, but its symptoms we can control. So we should try to control its symptoms. And we are celebrating this World Asthma Day every year to raise its awareness. And first time it was celebrated in 1998, and every year this is celebrated on first Tuesday of May, and this is the time when weather changes from spring and fall. So this time in this time we get more infections from weather changes. That's why this disease is celebrated in these times. And for every day, whatever we are celebrating, whatever day we are celebrating, for that day we are having particular theme. So for this also, there is a specific organization which is called GINA, and it every year its theme changes every year. For this
And as in 2021, the theme was uncovering asthma misconceptions, and which aimed to address some of the common misunderstandings about asthma and promote accurate information and education. In 2022, its theme was closing gaps in asthma care, which focused on improving access to asthma care for people around the world. This theme aimed on improving access to asthma care for people around the world. And this year in 2023, the theme of the Asthma Day is Asthma Care for All. And this theme focused on the importance of ensuring that everyone with asthma, regardless of their geographic location and socioeconomic status or other factors, has access to effective and affordable asthma care. So the goal of this theme is to promote equity in asthma care and management and reduce the burden of asthma on individuals, families, and communities worldwide. So there are so many causes which cause asthma, and when we are having this, it can affect our respiratory system, and because of the environmental factors also, and allergies, and one of the major reason is genetics also for this. And some common symptoms are there, like coughing, wheezing, and shortness of breath, and chest tightness. So for treatment and management, we can cure it by effective treatment like inhalers and steroids and other medications which we can use for this. And for this, there are so many organizations for to prevent this asthma. And when we are celebrating this, then also we are promoting people to know about it, like in educational organizations and hospitals, and in industries also it is celebrated to know about this. And by these things we can know how we can cure it. So this is an opportunity for us. So we can come together to raise this awareness, educate people and who are living around us and who are having asthma. They can, if when we are celebrating that time, people can come who are having asthma or who have faced, they can share their experiences, which will help to those people who are having this disease. So we can support individuals and everyone with this disease, and we can work towards this, where asthma is by that we can control it, and we are trying to control everywhere. And this is our all responsibility, not only one people. And if we are celebrating any day or anything, so we should not only have a discussion, we should understand why this is celebrated, and we should make people understand around us. Thank you. I will say now everyone to speak about this. Thank you, Ramkali. You have talked about asthma in a very detail. Actually, asthma is a disease connected with our breathing system. हमको सांस लेने में परेशानी होती है, और जब कभी अस्थमा अचानक किसी को प्रॉब्लम करता है तो उसको सांस में दिक्कत की दौरा लगता है।
जनरली इसको अवेयर होना चाहिए, किसी को सावधानी से सफाई से रहना, और इसके जो उपाय हैं उसको भी देखना है। गार्लिक बहुत फायदेमंद होता है, गार्लिक का सेवन करना अस्थमा में। और भी कई सारी चीजें हैं। तो थैंक यू रामकली। नाउ यू कॉल एनीवन Thank you, नेक्स्ट। sir. कोई और दूसरा बोले प्लीज। गुड इवनिंग Yes, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड अस्थमा डे, तो अभी अच्छा, रामकली दी ने कौन बोल रहे हैं? बताया। अपना नाम नीतू बोल रही हो आप? यस सर। कोई रेखा? ओके, सर नीतू बोल रही सर। ठीक है। अपना नेम बोलने से ठीक है, जिससे और लोग भी जान जाएंगे, है ना? प्लीज करिए, यस। बोलिए। तो सर जैसे अभी रामकली दी ने बताया वर्ल्ड अस्थमा डे के बारे में बताया, तो सर मैं इस अस्थमा को डिटेल से बताना चाहूंगी कि अस्थमा होता क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और कोई हम मेडिसिन ले रहे हैं अस्थमा में तो वो कैसे जाके वर्क करता है। मैं अस्थमा को डिटेल में बताना चाहूंगी। सर जो अस्थमा जो होता है इसको ब्रोंकियल अस्थमा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा ब्रोंकियाई होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अस्थमा होता है, इसलिए इसको ब्रोंकियल अस्थमा भी कहते हैं। अस्थमा एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो हमारे पर्सन होते हैं उनका जो ब्रोंकियाई होता है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, या फिर स्वेलिंग हो जाता है, या फिर एक्सेस म्यूकस इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस पर्सन को ब्रीदिंग लेने में डिफिकल्टी होने लगती है, तो इसे हम कहते हैं अस्थमा। अस्थमा को समझने से पहले हम एक बार ये जानेंगे कि नॉर्मली हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। जो हमारा माउथ होता है या फिर जो नोज होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। वो एयर हमारी बॉडी में ट्रैकिया के थ्रू होकर के जाता है और हमारे ब्रोंकियाई के पास, मतलब जो हमारे लंग्स होते हैं उसके अंदर ब्रोंकियाई प्रेजेंट होते हैं, उस ब्रोंकियाई के अंदर वो हमारा एयर जाता है। जाने के बाद जो हमारा ब्रोंकियाई होता है उसका जो आगे का पोर्शन होता है उसको ब्रोंकियाई, और उसके पीछे वाले पोर्शन को एल्वोलाइज बोलते हैं। और वो जो एल्वोलाइज होता है वो हमारे ब्लड कैपिलरी के साथ अटैच होता है, जिससे जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन गया हमारे ब्रोंकियाई के पास गया, ब्रोंकियाई के पास गया उसके बाद हमारे एल्वोलाइज के पास गया, अब वो हमारे ब्लड कैपिलरी के साथ अटैच्ड है तो वहां से हमारे ब्लड में चला गया। जाने के बाद सर ब्लड के थ्रू अब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में चला गया, और जो डीऑक्सीनेटेड जो हमारे ऑक्सीजन है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से इलिमिनेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। नॉर्मली ये फंक्शन चलता रहता है। अब क्या होता है सर, जो हमारे ब्रोंकियाई होते हैं नॉर्मली तो वो अच्छे होते हैं, जैसे ही हमको अस्थमा की कंडीशन हो जाती है, हमें अस्थमा हो जाता है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर उसमें स्वेलिंग हो जाता है, तो सर क्या होता है कि जो एयर इजिली जा रहा था वो अब इजिली नहीं जा पाता है उसमें, जिससे डिफिकल्ट हो जाता है, हमको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और अस्थमा हो जाता है। जब सांस लेने में दिक्कत होगी, जो O2 इजिली चला जा रहा था अब इजिली नहीं जाएगा, वो जाएगा ब्रोंकियाई के पास, ब्रोंकियाई से एल्वोलाइज के पास जाएगा, और इजिली ना जा करके क्योंकि जो रास्ता था जाने का वो क्या हुआ, पतला हो गया या फिर कम हो गया, एक तरह से कह सकते हैं उसमें ब्लॉकेज हो गया। अब वो थोड़ा ही O2 हमारी बॉडी के अंदर जा पाएगा, जिसकी वजह से वो हमारे ब्लड में भी थोड़ा ही जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में सर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आरबीसी भी कम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इस्कीमिया। ये दो टर्म होते हैं जो एक ही साथ होते हैं। जब हमारी बॉडी में O2 की कमी होती है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया, और जब O2 की कमी हुई तो उस ऑक्सीजन को ब्लड ही हमारी पूरी बॉडी में लेके जा रहा है, तो आरबीसी में भी कुछ कमी आ जाती है, जिसको बोलते हैं इस्कीमिया। ये एक कह सकते हैं कि एक सेल इंजरी होता है, जिसमें जो हमारे सेल होते हैं वो धीरे धीरे दर्द करने लगते हैं। सर जो हमारी बॉडी होती है सेल से मिलकर बनी होती है, और सेल के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो एटीपी का सिंथेसिस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और वहां पे हमारा एटीपी सिंथेसिस रहता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जब एयर उसके पास प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा तो उसका जो सेल है वो डैमेज हो जाएगा, धीरे धीरे करके सेल डैमेज हो जाएगा, और करके बहुत अस्थमा जो होता है बहुत सीवियर कंडीशन में हो जाएगा। सर इसके क्या क्या रीजन होते हैं, यदि मैं इस पे बात करूं, एक तो मैंने बताया कि इन्फ्लामेशन हो गया। अभी मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि ये इन्फ्लामेशन किस वजह से होता है, कैसे होता है।
एक ये भी कारण होता है, कई पर्सन ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज की भी एक लिमिटेड होती है, कितना एक्सरसाइज करना है, एक्सेस अमाउंट में वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सांस जल्दी से ले रहे हैं और जल्दी से छोड़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा उसकी वजह से भी सर अस्थमा हो जाता है। पॉल्यूशन की वजह से, धूल की वजह से भी अस्थमा हो जाता है, जिससे मुझे लगता है कि आई मीन 50 से ज्यादा परसेंट जो पर्सन हैं, किसी की वजह से जो अस्थमा होता है या फिर जो एलर्जी होती है उससे परेशान। सर एक होता है हमारा कि ज्यादा हम स्ट्रेस ले रहे हैं, इसकी वजह से भी हो जाता है, और स्मोकिंग कर रहे हैं उसकी वजह से भी हमें अस्थमा हो जाता है। सर स्मोकिंग करने की वजह से एक और डिजीज होता है जिसको सीओपीडी कहते हैं, जिसका पूरा नाम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। सर ये मेनली स्मोकिंग करने की वजह से होता है, यदि कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो उसे सीओपीडी होगा। साथ ही साथ कोई ऐसा पर्सन जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है लेकिन उस पर्सन के पास बैठा है जो स्मोकिंग कर रहा है, तो उससे जो धुआं निकल रहा है उसकी नोज के थ्रू करके उसकी बॉडी में जाएगा। धीरे धीरे करके ये लंबे समय तक यदि ये प्रोसेस चल रहा है तो जो पर्सन स्मोकिंग नहीं कर रहा है उसे भी सीओपीडी होने के चांसेस रहते हैं और उसे भी सीओपीडी हो जाता है। सर ये तो हमने जाना क्या क्या रीजन है हमारे अस्थमा होने के। मैं टाइप की बात करूँ तो सर 2 टाइप्स के अस्थमा होते हैं। एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक अस्थमा, जिसको नॉन एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं, और एक होता है इंट्रिंसिक जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है इसको एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं। मीन्स की एलर्जी की वजह से होता है, जैसे डस्ट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, केमिकल्स हो गया, इनकी वजह से होता है। जो इंट्रिंसिक अस्थमा होता है इसको नॉन एलर्जिक मीन्स ये जेनेटिक होता है, जैसे हमारे मदर या फादर किसी को है, ये जेनेटिक उनके बच्चों में, कोई जरूरी नहीं सारे बच्चों में, जिस बच्चों में वो जीन्स आते हैं उनको ये अस्थमा हो जाता है, तो जेनेटिक भी देखने को मिलता है। सर यदि मैं बात करूं ये होता कैसे है, तो जैसे ही कोई फॉरेन मटेरियल, जैसे मैं डस्ट की बात करूं, हमारी बॉडी में एंटर करता है, जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है वो जनरेट हो जाती है। जब इम्यून सिस्टम जनरेट हो जाती है तो क्या होता है, वो एंटीबॉडी का मतलब एंटीबॉडी को उससे फाइट करने के लिए देती है। जो भी बाहर से मटेरियल गया है तो इम्यून सिस्टम जनरेट हुई, उसको पता चला कि हाँ बाहर से कोई मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, वो इम्यून सिस्टम को जनरेट करेगी और इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी को जनरेट करेगा। जो बाहर से मटेरियल आया वो एंटीजन है, और जो हमारी बॉडी ने उससे फाइट करने के लिए जनरेट किया वो एंटीबॉडी है। अब ये दोनों आते हैं, और एक होता है हमारा मास्ट सेल, वो क्या करता है, बाहर से जैसे ही कोई फॉरेन मटेरियल आता है उससे फाइट करने के लिए एंटीजन को आगे की तरफ भेजता है। तो जो हमारी एंटीबॉडी है उस पे एंटीजन आकर के बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद क्या होता है सर, डीग्रेनुलेशन हो जाता है, इसका मतलब ये ब्रस्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं, और इस मास्ट सेल के अंदर जो हमारे मीडिएटर्स रहते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। मीडिएटर्स में हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या होता है, बाहर से कोई मटेरियल आता है उससे फाइट करेगा और फाइट करके उसको प्रिवेंट करेगा ताकि वो हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जी केस ना करे या फिर कोई भी डिजीज केस ना करे। सपोज वो डस्ट का पार्टिकल है हमारी बॉडी में आया, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जनरेट हुई, यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों फाइट किए, फाइट करने के बाद वो ब्रस्ट हुए, उनका डीग्रेनुलेशन हो गया। जब डीग्रेनुलेशन हुआ तो उसमें से कुछ मेडिएटर्स रिलीज हुए जैसे कि हिस्टामिन हो गया। अब ये मेडिएटर्स क्या करते हैं, जो भी फॉरेन मटेरियल आए हैं उसके साथ फाइट करते हैं, फाइट करने के बाद उसको नष्ट तो कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, लेकिन जब वो फाइट करते हैं तो उसमें हमारी बॉडी को भी कुछ नुकसान होता है। वो ब्रोंकियाई के पास वहां पे फाइट करते हैं, उसको फाइट करके उसको नष्ट तो कर दिए, लेकिन साथ ही साथ उसमें इन्फ्लामेशन केस कर देते हैं। जो हमारी ब्रोंकियाई होती है उनमें इन्फ्लामेशन केस कर देते हैं, और जब इन्फ्लामेशन केस हो जाता है तो वहीं पे स्वेलिंग भी हो जाती है। जब स्वेलिंग हो जाती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अस्थमा। वो हमारी बॉडी को बचाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या होता है इस कंडीशन में कि वो जब फाइट करते हैं तो फिर हमें उनमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, या फिर जो म्यूकस की मैं बात करूँ वो एक्सेस अमाउंट में, जैसे हमारी बॉडी में हम भोजन भी ले रहे हैं तो म्यूकस जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जैसे ही हम भोजन ले रहे हैं तो ये हमारे भोजन को इजिली, जो हमारा इसोफेगस होता है उसके थ्रू हमारे स्टमक में पहुंचाता है। ऐसे तो ड्राई रहेगा, म्यूकस नहीं रहेगा, तो वो कुछ भी रहेगा वो ड्राई फॉर्म में रहेगा और इजिली नीचे नहीं जा पाएगा। तो म्यूकस जो होता है वो वहां पे म्यूकस ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा, क्योंकि जो म्यूकस है जब वो फाइट कर रहे हैं तो वो उसे बचाने के लिए ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है और ज्यादा ब्लॉकेज हो जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अस्थमा।
सर मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करूँ तो एक तो हम सेल्फ केयर करके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मीन्स जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको इम्प्रूव करके, उसको चेंज करके, जैसे कि हमें इस मौसम से एलर्जी है या फिर ऐसे है तो हमें उससे बच के रह करके अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर ले, टाइम से उठना, इस वजह से ठीक कर सकते हैं। सर यदि बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में, मतलब जो अस्थमा है बहुत सीवियर कंडीशन में हो गया, उसके लिए एक ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। उसमें क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो ऑक्सीजन थेरेपी के थ्रू पूरी की जाती है, और जो भी हमारे सेल है उनके पास तक प्रॉपर अमाउंट में जो O2 है वो पहुंचाया जाता है। सर तीसरा होता है मेडिकेशन, जिसमें हम ड्रग ले सकते हैं और ड्रग लेकर के उसको ठीक कर सकते हैं। मेनली जो अस्थमा के लिए ड्रग आता है वो ब्रोंकोडायलेटर कैटेगरी के जो ड्रग होते हैं वो आते हैं। ब्रोंकोडायलेटर ड्रग क्या करते हैं, जो हमारा ब्रोंकियाई इन्फ्लामेशन हुआ था या फिर सिकुड़ गया था, जाते हैं और जाकर के उसको डायलेट कर देते हैं। जब डायलेट कर देते हैं तो इजिली उसके थ्रू जो हमारा एयर होता है वो आ जाता है और चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा अस्थमा जो है ठीक हो जाता है। इसके मैं ड्रग की बात करूँ तो सालबुटेमॉल करके एक जो ड्रग आता है उसका यूज किया जाता है। सर कुछ इनहेलर्स भी आते हैं मेनली अस्थमा के लिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहां पे अस्थालीन नाम का जो इनहेलर होता है वो प्रेजेंट होता है। सेरोसॉल नाम का भी इनहेलर होता है, वो भी सिर्फ अस्थमा के लिए यूज किया जाता है। ये इनहेलर क्या करते हैं, जब हम लेते हैं तो ये डायरेक्ट हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पे जाके वर्क करते हैं। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से जहाँ पे जैसे ये इन्फ्लामेशन हुआ है डायरेक्ट वहां जाएंगे और वहां पे जाकर के अपना जो इफिकेसी है, पोटेंसी है, शो करेंगे, जिसकी वजह से जो हमें डिजीज हुआ है वो ठीक हो जाता है। तो इनकी जो मैं बात करूँ इफिकेसी की या फिर पोटेंसी की, तो वो 100% होती है, डायरेक्ट हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पे जाके वर्क करते हैं। सर साथ ही साथ जो हमारा अस्थमा है इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे हमको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, कफ वगैरह हो जाता है, और साथ ही साथ ब्रीथिंग मीन्स जब हम सांस लेते हैं तो कुछ आवाज सी आती है। सांस लेने में चूंकि दिक्कत होती है तो कुछ हमें ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत जबरदस्त जबरन सांस ले रहे हैं, तो कुछ आवाज सी आएगी। तो ये कुछ हमारे सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ अस्थमा। टाइप ऑफ अस्थमा मैंने बताया कि टाइप, सर टाइप में कुछ और भी होते हैं, जैसे सर होता है कुछ हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमें अस्थमा हो जाता है, उसको एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा बोलते हैं। यदि हमें कफ कोल्ड वगैरह हुआ है और हम ज्यादा मात्रा में एस्प्रिन ले रहे हैं, उसकी वजह से भी अस्थमा होता है, जिसको एस्प्रिन इंड्यूस अस्थमा बोलते हैं। कुछ ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है, जैसे कि केमिकल्स, हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनकी वजह से अस्थमा होता है, तो उसको हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा बोलते हैं। तो ये मैंने सर अस्थमा को बताया कि अस्थमा क्या होता है। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अस्थमा के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो कैसे वर्क करता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो फॉरेन मटेरियल जा रहा है यहाँ पे हमारे एंटीजन एंटीबॉडी दोनों फाइट कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम ऐसा ड्रग बनाएंगे जो हमारी बॉडी के अंदर जाके जो एंटीजन और एंटीबॉडी फाइट कर रहे हैं वो फाइट ना करें, जो हमारा मास्ट सेल ब्रस्ट हो रहा है वो ब्रस्ट ना हो, जो उस पर डीग्रेनुलेशन हो रहा है वो डीग्रेनुलेशन ना हो, ना होगा तो हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा, हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा तो फिर ये फाइट नहीं करेंगे, जब फाइट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहां पे इन्फ्लामेशन केस नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसके ड्रग का प्रिपरेशन करते हैं, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे जो अलग अलग जा करके अपना एक्शन शो करते हैं। थैंक यू। Thank you, Nitu. तो Now I थैंक्स will say, नेक्स्ट, Nirus to और भी come. कोई बोलना चाहे तो वो स्टार्ट कर सकता है। रेखा। यस यस दी आई स्टार्ट। एक्चुअली पहले तो रामकली दी और नीतू ने सब बता ही दिया है, लेकिन फिर मैंने जो प्रिपेयर किया मैं बता रही हूँ। जैसे कि आज का टॉपिक है वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होता है अ, अगर कोई पेशेंट है उसको जो बीमारी है, अगर वो कांटेक्ट में आने से अगर वो बीमारी, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। अगर कोई पेशेंट जो बीमारी से सफर कर रहा है, अगर वो बीमारी उसके कांटेक्ट में आने से लग जा रही है, उसे कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो एक तो अस्थमा जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इसको हम वर्ल्ड अस्थमा डे के फॉर्म में मनाते हैं, और लोगों इस बीमारी के बारे में
एजुकेट करते हैं और अवेयर करते हैं, क्योंकि जो लोग इस बीमारी को सफ़र कर रहे हैं वो इस बीमारी के बारे में जाने, एजुकेट हो, और साथ ही साथ वो लोग भी हो ताकि उन्हें ये बीमारी झेलने की नौबत ना आए। इसको वर्ल्ड अस्थमा डे के फॉर्म में मनाते हैं, और इसको मई के फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है। WHO के अकॉर्डिंग अस्थमा इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन जो बच्चों को और एडल्ट्स को काफी इफेक्ट। आज जैसे हमारा टॉपिक अस्थमा के ऊपर है, इसको इतना इलेबोरेट तरीके से रामकली और नीतू और सब लोगों ने बताया। ये समझने की बात है कि अस्थमा जो है उसमें सांस की ही प्रॉब्लम है। और जैसा कि नीतू ने बताया, बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारी चीजें, लेकिन सबसे बेटर इसमें क्या है, हमको लाइफ स्टाइल ठीक रखनी पड़ेगी, क्योंकि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो अंदर से ही जनरेट हो जाती है। कभी किसी चीज से अगर एलर्जी है, वो हमको जस्ट हो गया, जैसे वेदर चेंज होता है, ठंडक से गर्मी, गर्मी के ठंडक, उन दिनों में सबसे अधिक इसका। आवाज नहीं आ रही है सर फिर से। आवाज मेरी कट जा रही है, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है ना। तो जी अस्थमा के लिए लाइफ स्टाइल अपने को सही रखने की जरूरत है, तभी हम इससे बच सकते हैं। और ये मेजर बीमारी है, जितनी अभी हम लोगों ने 2-3 बार से किया, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी भी हमारे यहाँ महामारी की तरह है। वो एक संक्रामक बीमारी है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पहुंचता है। या अस्थमा ऐसा नहीं है, लेकिन वो जिसको है उसको अधिक क्रोनिक बीमारी है, उसको अधिक परेशान करती है। यस, बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो हम लोगों ने टीबी के ऊपर भी एक डिस्कशन किया था, फिर हमने मलेरिया के ऊपर किया। मलेरिया तो अगल बगल में जो गंदगी होती है, जो मच्छर होते हैं, उनसे होता है। और आज हम लोगों ने जो अस्थमा के ऊपर किया, अस्थमा भी मेजर बीमारी है, बहुत अधिक है, बहुत लोगों को परेशानी होती है। तो इसके ऊपर जो हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया है, इसको हमें समझना भी है और एक दूसरे को समझाना है, स्पेशली जो रूरल एरिया में है, ग्रामीण एरिया में है, उनको इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। अगर हम सबको नॉलेज है तो एक दूसरे को हम लोग यहाँ बता भी सकते हैं, अपने गांव में, अपने अड़ोस पड़ोस में, सब चीजों को। क्योंकि जितना अगर हमारा नॉलेज है, इस नॉलेज को रियल सोसाइटी में फैलाने का भी काम हमारा है। तो डिस्कशन का हमारा मेन इशू ये भी है। वॉइस कट जा रहा है, तो अभी 5 मिनट है, और किसी को कुछ बोलना है, डिस्कशन करना है तो बोल सकते हैं। कोई है जो बोलना चाहता है, I will या request कोई को कोई Tejal क्वेश्चन करना to हो? speak. Sir, Hello. Tejal बोलेगी. यस, वेलकम वेलकम Yes. तेजल। तो आज ही ज्वाइन है, MS पोस्ट ग्रेजुएशन की नोएडा में है लगता है। तेजल, स्वागत है, ग्रुप में भी जुड़ी हुई है। Thank you, sir. वेलकम तेजल, आप समय के वेलकम प्लीज। Yeah. World Asthma Day. Actually, I don't have much knowledge about it, but still, I would like to throw some points over it. As Ramkali and Neetu have already given us a lot of information, but still, I would like to conclude the session. World Asthma Day is organized by a global initiative for asthma. A World Health Organization collaborative organization found in 1993. World Asthma Day is held each May to raise awareness of asthma worldwide. Although asthma cannot be cured, it is possible to manage asthma to reduce and prevent asthma attacks, also called episodes or episodes. The Global Initiative for Asthma has chosen closing gaps in asthma care as the theme for the 2022 World Asthma Day. There are a number of gaps in asthma. Few I would like to tell. The gaps are unequal access to diagnosis and treatment between care for different socioeconomic, ethnic, and age groups, between wealthy and poorer communities,
and countries in communication and care across the primary, secondary, tertiary care interface in communication and education provided for people with asthma, quality of asthma care plans versus. So these are the things. However, implementing recommendations based on scientific evidence is challenging across the globe. Not all local solutions are applicable globally, and similarly, global recommendations may not be applicable locally. The challenge posed by this year's theme is for international respiratory communities to work together with colleagues, patients, and healthcare providers to identify and close the gaps in asthma care and to help implement and share innovative solutions locally and globally. Yeah, that's it, sir. Hello, am I audible? Thank you. Hello. Yes, you are audible. Yes, please. Yes, actually, this much only because I have not prepared the theme today. Oh, Yeah. no problem, Tejal. Thank you. No problem. Welcome, Actually, sir. Welcome, sir. group discussion is generally to discuss in easy going. There is no problem. There is no Yes, sir. ग्रुप डिस्कस ग्रुप हम सब लोगों को बोलते हैं कि ग्रुप डिस्कशन का हमारा टारगेट केवल यही है कि आपस में डिस्कस करके एक दूसरे का नॉलेज को शेयर करना। जैसे किसी टॉपिक पे कोई बढ़िया जानता है, किसी टॉपिक पे बढ़िया जानता है दूसरा पर्सन, तो उसको शेयर करना है, ये बेटर है। हम लोग तो जैसे नीतू ने और रामकली ने, इन लोगों ने जितना डिटेल सब लोगों को आज धन्यवाद। मैं तो अभी बहुत दूर ट्रेवल कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे गाड़ी में हम लोग हैं, इसलिए मेरा सिग्नल कई बार कट रहा है, जुड़ रहा है। तो रेखा और नीतू, तेजल, रामकली ने लीड लिया। तो रामकली, यू आर हियर ना? Yes, sir, I'm here. तो अब 1 मिनट है, आप वो करके क्लोज कर सकती हो। अब क्लोजिंग रिमार्क दे दो, क्लोज होगा। Yes, sir. प्लीज। Okay, thank you, everyone. All have done very well. Everyone spoke, and we should speak every day. And when we are speaking, we are getting confident. And if we are joining any session, we are getting knowledge, and we are getting the way to speak how others are speaking who have knowledge. Because if we have knowledge, but we are not sharing, then we are not confident how to share. So while listening, also we can understand and we can do better. So thank you, everyone, and we will keep doing these sessions on every occasion, and whatever topics will be there, we will do and we will learn, and we will, as our संकल्प हम पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे।